Okay, good morning to all. And now today the topic start from the use waste of agricultural waste, how to manage the crop residue and the directly effect on the soil quality in the based of the rice cropping system. This is the neat topic. What is the how to manage the agricultural waste? What is the benefit from the agricultural waste? And today I discussed. Okay, then now we start the how to manage the crop residue. This is the crop residue is the as the vegetable crops material that is left on the field after a crop is harvested and burned or processed. After the farming time, after the farm, okay, you grow the plants, something you cut the harvest, okay, and then crop the cut the crop and then use the this type of material is a left material used in the how to keep the processed. Okay, this is vegetable crops material left of the from the field. Okay, this is the crops residues. The all are the vegetable crops. Okay, and the removal of crops residue leads to low soil fertility. Okay, this is the you all are seen in the after the crops cut, and then you remove all the crop residue leads to the fertility is low, not you remove the from the field, and yeah, okay, and thereby they decrease the crop production. Then you decrease the crop production due to the loss of fertility from the without crop removal residue. Okay, you already you seen in the during the farming time ki all are type of okay, and the straw of must kale crop contains about 35 to 10 and the 80% the total nitrogen phosphorus and taken by up to the crop. Okay, then now is the global availability of the crop residue. This is the crops. There are many types of crops residues available. This is the R straw, rice husk, wheat, barley, sugarcane, cotton, oats, and corn. These are the crops residues available in the atmosphere. This type of use in the after the harvesting. In Asia, detail is the given Asia, Africa, South America, and is world. Okay, the Asia in Asia, this is a metric ton. This rice straw and rice husk is the data is available is a 7,71,804 metric ton. This is the per year rice straw is produced from the during the agriculture time. Rice husk weight is the barley, sugar cane, cotton, oats, corn. These are the globality of the crop residue in the Africa and the South America and the world. Okay, this is the variety of the crop residue. About of course in India, the crop means the paddy. Paddy is the dhan, wheat, pearl millet, maize, sorghum, barley, and others. Okay, the paddy, this residue in a metric ton is this is nutrients and 10 q ton metric ton is available nitrogen PDO5 K2O and they both are a mixed. ठीक है. Okay, the paddy is a 225.9 metric ton. Weight 98.9 and pearl millet is a 12.0 maize is 11.5 sorghum is 10.9 and barley 2.6 and others is 4.1 is the residues available in India. And how much nutrients in ton? Nitrogen
Okay, this is the nitrogen available nutrients available in the this residue nitrogen, phosphorus and oxygen, chromium and oxygen, and the both are the same. Okay, this is the availability of crops in India. Okay, this is the management of crop residue. This is the four types of management you to manage the crop residue: the residue burning, baling and removing the straw, surface retention and mulching, and the residue incorporation. This is the four types of management of crop residue. How to remove the from the how to which type crop residue remove from the field. Okay, then you four type of management system you adapted. Okay, the first you burn, then baling and removing the straw and the surface extension and residue incorporation. Residue burning, this is the advantage and disadvantage. What is the advantage from the residue burning and the disadvantage the what is the residue burning? The advantage, first advantage is the facility timely planting of the flowing crops. It facilitated timely planting of the flowing crops. It clears that land quickly and residue before the next crops. Okay, and it kills soil-borne deleterious pests and pathogens. But disadvantage is very important. What is the first? You the lost the fertility. Okay, disadvantage it causes significantly air pollution. This air pollution increase due to burning of the residue, paddy residue. Okay, and as for loss of fertility, and the kills beneficial soil insect and microorganism. You after you burning the residue, then yeah, you kill the soil insect and microorganism. Soil microorganism increase the fertility. Okay, and the loss of soil organic matter. This three is the very important. Not these suggestions from the my side. This is the not burn the residue. Okay, not burn the residue. Due to this, the you kill the microorganism. Then you kill the microorganism. You the lost the soil fertility. Okay, and then you this type of burning residue burning. This increase the air pollution. Okay, air pollution increase your AQI is the increased. Then visibility is the zero. Okay, this advantage and disadvantage of the residue burning. Then baling and removing the straw. You baling and remove the straw from the field, then used for livestock field. Hello. Okay. Then you, what is the baling and removing the straw? This is the first use for the livestock feed. And then is the fuel, building materials. Okay, livestock bedding and the bedding for the vegetable cultivation and mulching for the okra and other crops. Hello.
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो एलएमएस में जाकर अपना अटेंडेंस करो, तुम लेट ज्वाइन किए तुम लोग सब। ठीक है, क्या सर? एलएमएस में इन करके अटेंडेंस कर लो, हो जाएगा। क्यूआर कोड फिर से शेयर करें? नो सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? ओके। Your topic is the management of crop residue and its effect on soil quality in rice-based cropping system. Okay. What is the effect of residue burning in the atmosphere ecosystem? Anyone can define? This type of impact on ecosystem. तो बता सकता है? सर स्मोकिंग वगैरह होगा सर। तो This is not a residue burning means, तो what, जो सपोज जब धान की खेती होता है ना, तो उसका लास्ट में जो हार्वेस्टिंग बाद क्या बचता है? यस सर, वो जो सो क्या बोलते हैं? भूसा बोलते, भूसा, नॉट भूसा। ये फिगर देखो, ये फिगर दिख रहा है, ये क्या रहता है? जो जब हम लोग धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती होता है, उसके बाद जब उसका हार्वेस्ट होता है, उसको उसका क्या बचता है उसमें? तो क्या बोलते हैं? ये जो पंजाब में जो जलता है फरारी, इसको फरारी बोलता है ना? बोलो। यस सर। तो उसको बर्न करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? जो नियरेस्ट सिटी इज द दिल्ली। ओके, सर तो तो सिटी ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है तो वो तो हम लोग के हेल्थ के लिए खराब है सर। उससे क्या, किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? एयर क्वालिटी पे, इकोसिस्टम एयर पे? क्वालिटी, एयर क्वालिटी क्या, किस एयर टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है? और फुल एनवायरनमेंट पे सर इफेक्ट करता है। एयर क्वालिटी पे मतलब कि उसमें बहुत सारा गैसेस हो जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, और ज़्यादा स्मोकिंग के चलते ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होता है सर। और यस सर, जब दिल्ली में पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो ड्यू टू द बर्निंग ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब पंजाब जो नियरेस्ट स्टेट है उसका, दिल्ली का, तो लोग जब फरारी को बर्न करता है, ठीक है, ड्यू टू द AQI इज हाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा कि 400 500 विजिबिलिटी इज द लो, फर्स्ट वन इज द विजिबिलिटी इज लो। ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा बिलो हो जाता है। तुमको उसके लिए जब देखिए 2 या 3 ईयर्स बिफोर, जब बिफोर लॉकडाउन, वहां पे दिल्ली का क्या सिचुएशन था? 400 500 इज द AQI। उस टाइम क्या हुआ था कि ऑक्सीजन बार खुला था, ओपन हुआ था कि जाइए कहीं पे एक ऑक्सीजन बार में इतना पैसा पे कीजिए, 400 पर आवर्स, 500 पर आवर्स, देन यू टेक द फ्रेश ऑक्सीजन। ये था दिल्ली का सिचुएशन ड्यू टू द रेसिड्यू बर्निंग। इसमें एडवांटेज भी कुछ है, डिसएडवांटेज तो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिसएडवांटेज द की causes significant air pollution increased, then your loss of fertility means kills beneficial soil insect and microorganism. ओके, अगर हम लोग ये बर्न करते हैं, ठीक है, देन तुम जब बर्न करोगे तो उससे क्या होगा? तुम्हारा लॉस होगा फर्टिलिटी, मींस इंसेक्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, उससे किल हो जाएगा। जब बर्न करोगे तो जो को जहां पे अवेलेबल है माइक्रोऑर्गेनिज्म इंसेक्ट, तो दिस इज किल, तो डेथ हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा फर्टिलिटी लॉस होगा। अच्छा, जब हम लोग फार्म करते हैं, एग्रीकल्चर, जब तो
उसमें कुछ ऐसा माइक्रोनिज्म रहता है कि जो फार्म को इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, वो किस टाइप का होता है? इंसेक्ट या जो भी माइक्रोनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग हिंदी में बताओ, कुछ ऐसा कोई देखे हो? सर वो अर्थवॉर्म। हाँ हाँ, जो अर्थ नहीं रहता अर्थवॉर्म है, सर। हाँ, जो एक जगह इन करता है दूसरी जगह निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ये सर उस अर्थवॉर्म बोलते हैं। हाँ, हिंदी में? केचुआ। हाँ, या तो उससे क्या होता है, केचुआ क्या होता है, कील हो जाता है, उससे हम लोग बर्न करते हैं तो मर जाता है, ठीक है? देन यू नॉट, फर्स्ट यू नॉट बर्न द रेसिड्यू। अगर एयर पोल्यूशन हमारा एक ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कील हो रहा है तुम्हारा माइक्रोनिज्म, देन यू ऑल आर लॉसेस, बट these two part is very important for the ecosystem and the soil fertility. And then third one, loss of soil organic matter. Then अगर लॉस हमको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो लॉस ही हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक फॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो यू यूज द यूरिया एंड फॉस्फेट, देन यू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सपोज हम लोग एक मैन, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन है, आदमी है, ठीक है, वो बीमार होता है, किसी को फीवर होता था, पहले क्या होता था कि उसको हम लोग काढ़ा पिलाते थे, ठीक है, होता था ना पहले? तो Yes, काढ़ा sir. काढ़ा क्या होता था? वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक था, ठीक है, उससे हमको जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, जो बॉडी का जो हमारा स्टेमिना, वो कभी लॉस नहीं होता था। बट अब दिस टाइम थोड़ा फीवर हुआ, पैरासीटामोल खा लो, यही होता है ना, या एंटीबायोटिक खा लो। अगर हमारे बॉडी को एंटीबायोटिक का हैबिट हो गया, तो तुम्हारे बॉडी को ऑलवेज, कोई भी फीवर हो, कोई भी डिजीज हो, तुमको एंटीबायोटिक चाहिए। तो यही हमारा है, अगर तुम इनऑर्गेनिक फॉर्म करते हो तो उससे क्या होता है, डे टू डे फर्टिलिटी लॉस होगा। तो हम लोग आजकल जो खाना खाते हैं, सब केमिकल्स खाते हैं, ठीक है, तुम दवा खा रहे हो। पहले के लोग क्यों इतना स्ट्रांग, बहुत 100 ईयर्स रहते थे, जो हम लोग का पहले दादी बाबा जो रहते थे, आज वो लोग क्या, कब 100 ईयर्स उन लोग का एज रहता है, तब वो डेथ करते हैं। आजकल देखो 50-60 में सब चले जा रहे हैं। रीजन, ड्यू टू द केमिकल, यू ईट द केमिकल डे टू डे। हम लोग वेजिटेबल खा रहे हैं, वो केमिकल है। आज देखो वेजिटेबल क्या होता है कि शाम में छोटा सा है, सुबह होते देखते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है उसका? एनीवन? अगर कद्दू कद्दू का खेती करते हो ना, कद्दू एक एग्जांपल, लौकी का खेती करते हैं, मतलब जो उगाता है उसका सुबह शाम में देते हैं, छोटा छोटा रहता है, एकदम छोटा सा, स्मॉल में से 5 इंच का साइज, ठीक है। बट अगर वही सुबह देखें तो बड़ा बड़ा हो जाता है, 1 फीट 2 फीट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं क्या क्या इंजेक्ट करना पड़ता है उसमें, कोई भी तुम सर केमिकल एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, हाँ, मगर केमिकल्स यूज करते हैं सर। या केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सल्फेट, ठीक है। अगर तुम्हारा बॉडी को भी सल्फेट दिया जाए ना, तुम बहुत जल्दी सब लोग मोटे हो जाओगे, जो दुबले लोग हैं ना, तुरंत मोटे हो जाओगे। जो पतला लोग है, उसको अगर सल्फेट दे दिया जाए, डायरेक्टली डे टू डे इंक्रीज करेगा उसका हेल्थ। दिस इज वेरी हार्मफुल। अगर हम खा के उसको मोटा करें तो ज्यादा बेटर है, ऐसे तुम तो सल्फेट से रखोगे, डाइटली लोगे, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडीज। तो वही हमारा रीजन है कि कद्दू जो है, जो लौकी की खेती होता है, वो शाम में इतना छोटा रहता है और सुबह होते बहुत बड़ा हो जाता है, वो सल्फेट के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोग डे टू डे जो यूज करते हैं, ये तुम्हारा केमिकल्स यूज इन द फर्टिलिटी टाइम, योर द फार्मिंग टाइम, तो यू लॉस द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इज लॉस। हम सेम चीज वुमन को जितना लोग मेडिसिन देंगे, उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ लॉस होगा, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी बुखार खत्म हो जाए, जितना जल्दी कोशिश में रहोगे उतना जल्दी तुम्हारा बॉडी का जो हार्म ज्यादा हार्म करे।
This is the residue burning, is there advantage and disadvantage. Disadvantage is a very important. क्यों ज्यादा कोशिश करना try your best कि not burn the residue. Then you save the environment, then you save the fertility of the soil and the loss of organic matter. Save. Okay. And then now baling and removing the straw. This is used for the livestock feed, fuel, building materials, livestock bedding for the vegetables, cultivation and mulching for the orchard and the other crops. You see in the image, you all are the use the baling and remove the straw from the field. Okay. Then surface retention and mulching. What is the surface retention? It is a practice that leave the straw residue from a previous crops on the soil surface, okay, without any form of the incorporation. And it is help to protect the fertile surface soil against wind and water erosion. Okay, this method is the prevalent is no-till or conservation tillage practice where at least 30% of soil surface is covered with the crop residue. इस टाइप का देखे हो तुम लोग कहीं? ये सर गेहूं का खेत में बहुत होता है। या गुड। और कोई नहीं देखा है? जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, दिस यू ऑल आर सी दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. Then crop residue incorporation. The crop residue is incorporated completely or partially into soil, mostly by ploughing. And above ground portion chopped into the small size and can be incorporated by the power tiller. You see in the image, incorporation of a straw increase soil organic matter and soil nitrogen N, P, and K contents as a compared to the other management option. This is the nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay, this is the crop residue property. Okay, then now the problem of incorporation of crop residue in relation to crop growth. What is the relation between the crop residue in relation to the crop growth? क्या है relation, क्या होता है crop residue का और crop growth का? एक residue होता है, एक growth. What is the relation between them? What are the problems? In mobilization of the mineral nutrients. Nutrients तो available रहता है residue में ना? This crop residue, the many types of minerals, nutrients available, and then directly to the relation to the growth of crop. Okay, and the phototoxicity associated with the crop residue incorporation into the soil. Okay, you not burn the residue. Okay, then your crop growth is the increased. हम लोग क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक फार्म करता है वो जब आफ्टर हार्वेस्टिंग दे नॉट यूज द बर्न द मींस द रेसिड्यू. ओके, दिस इज द फार्म जो क्या किसान फार्मर क्या करता है, उसको क्या करता है फ्लॉपिंग में जुताई करता है खेत को, वैसे ही सेम थिंग. देन वो लीव द आफ्टर सम टाइम 10 days 12 20 days लीव. दिस ऑल आर द रेसिड्यूज ऑलरेडी बर्न फ्रॉम द ड्यू टू द सनलाइट. ओके, एंड ऑल उसमें क्या होता है, सब सड़ जाता है उसमें, और उस सन के थ्रू जल जाता है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो ही तुम्हारा हमारा फर्टिलिटी का काम करता है, फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. बट वो दिस इज टाइम टेकन. हमको फ्लॉपिंग करना पड़ेगा, देन उसको हम लोग उसको 10-20 days को छोड़ना पड़ेगा, देन यू यूज द सॉइल फर्टिलिटी एज अ फर्टिलाइजर, दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. ओके, देन क्योंकि वो रेट यू इंक्रीज द कॉस्ट. ये 2 times ऑफ उस टाइम लोग क्या 2 times ऑफ फ्लॉपिंग करना पड़ेगा, जुताई 2 time करना पड़ेगा, वो हमारा इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है. ओके, जो भी गांव में देख के कभी जाते होगे तुम लोग देखते होगे, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इधर बिहार झारखंड में अभी कोई ऑर्गेनिक फार्म नहीं करता है, ड्यू टू कि वो लोग का टाइम नहीं है, वो लोगों का पेशेंस नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फार्म करें. ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनिक फार्म और इनऑर्गेनिक फार्म करने से हमारा जो ग्रोथ है, क्रॉप का जो क्वांटिटी है वो कम होता है ड्यू टू द इनऑर्गेनिक से.
ऑर्गेनिक में ज्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता होगा, 2-4% का हम लोग वो नहीं बोल सकते हैं, बट अगर तुम इनऑर्गेनिक यूज करो तो उसको तुमको एवरी ईयर उसका जो फर्टिलिटी लॉस हो रहा है, मतलब अगर दिस ईयर 2021 तुमने यूज किया इनऑर्गेनिक, देन अगर तुम इस बार 2 बैग्स यूज कर रहे हो एक उस फार्मिंग में, तुमको नेक्स्ट ईयर 3 बैग्स यूज करना पड़ेगा उसको फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, हर एवरी ईयर तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा, देन यू क्रॉप ग्रोथ इंक्रीज्ड, क्योंकि हम लोग उसको मेडिसिन दे देकर उसका हम लोग फर्टिलिटी को लॉस कर दिए, जो उसका कैपेसिटी स्टेमिना है वो लॉस हो गया, उसका स्ट्रेंथ सब लॉस हो गया है। ओके, देन नाउ this is the how to overcome the problems in mobilization is the graph showing in the graph. This is the single line dotted is the snow straw. Okay, rectangular section is 0D, triangular and a cross and a 3 lines. Okay, this is a mineral Newton kg milligram per kg and day after for Newton nitrogen application. This is the show in the graph. Okay, this is the problem of phototoxicity. Then effect of crop residue on soil quality. क्या इफेक्ट करेगा soil quality पे? सर अगर हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं तो बैड इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बर्न नहीं करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्रॉप ग्रोथ में This type of positive help effect, करेगा। yeah, crop growth में actually this type of crop is in soil quality. तो फार्मर क्या करते हो देखते हैं अपना कि हमारा इकोनॉमिक, ओके, बट ये नहीं सोचते हैं कि हम इकोनॉमिक को जो सेव करने के लिए, अगर 500 रुपीज को सेव करने के लिए हम लोग क्या उसमें खर्च कर रहे हैं 2000 रुपीज, बट उन लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। रीजन क्या है कि अगर तुम वही अगर जो हम लोग जो जुताई फ्लॉगिंग करते हैं तो उस टाइम अगर 500 रुपीज खर्च होता है, ठीक है, मतलब 200 फर्स्ट टाइम 300 देन अगेन 300, तो टोटल कॉस्ट 600। ओके, बट वो चाहते हैं कि वन टाइम में हम फ्लॉगिंग करें एंड देन यू फार्म द पैडी एंड व्हीट फार्म, तो उसमें क्या होता है कि हमको फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, नंबर्स फर्टिलाइजर मींस दिस तक यूरिया एंड फॉस्फेट, यूरिया फॉस्फेट क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड, okay, the directly impact on the soil quality. The soil quality, all minerals and all microorganisms is the loss. Okay, यस सर, यस सर। this is the negative और positive. तो बट फार्मर लोग देखते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जोड़ते नहीं है कि क्या लॉस हो रहा है, क्या ये मेरा बेनिफिट हो रहा है। हम एक और दिखाएंगे तुम लोग को स्लाइड है, बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, the soil quality, the capacity of a specific kind of soil to function within natural or managed ecosystem boundaries to sustain plant and animal productivity, maintain or enhance water and air quality, and support human health and habitation. This is soil quality. Okay. यस सर। Soil quality indicator. This is a physical, chemical, biological, and organic matter. Organic matter is the all part of the organic matter, chemical, biological, and physical. This is a soil quality indicator. Okay, the physical loss, chemical, biological, and organic matter, all are the soil quality. You see in the monitoring of trains, there is soil quality and time. Soil quality is the baseline is the aggregating and sustain and degrading. Okay, but due to the time, the soil quality is the degrading and degrading. Means benefits and loss, and it sustain. There is not benefit, not loss, only constant. Okay, this is the monitoring of trains. Now, यस सर। now is the effect on physical quality.
What is the effect on physical qualities? This type of physical aggregation, porosity, hydraulic conductivity, infiltration, and bulk density. This is the effect on physical quality. You all are see the physical quality. The which type of impact on the soil? Porosity पे effect क्या पड़ेगा? किस type का पड़ेगा effect? Infiltration, bulk density, aggregation, hydraulic conductivity. कोई बता सकता है? सर पोरोसिटी तो डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीज तो इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज ही ना होगा। यस सर। ये जो भी है, अगर तुम ये क्या हो रहा है कि जो भी हमारा सॉइल पे तो डायरेक्टली तो इफ डिक्रीज ही होगा, थोड़ा ना इंक्रीज करेगा। अगर तुम मेडिसिन को दे रहे हो तो क्या उसको हम लोग थोड़ी ना इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो को डिक्रीज ही कर हो सकता है, क्योंकि इफेक्ट कर रहा है ना, ये फिजिकल क्वालिटी का इफेक्ट है। यस सर। And then this effect on aggregate is the show in the graph. Okay, this is the green manure compost farmyard. देखो green compost is a microbial biomass and product. Okay, and active organic matter, stabilize organic matter. The three type of soil aggregate explanation by the various sources of organic matter. They are using the organic matter. Then first is below the cereal crop residue. This is the substrate bottom part. Okay, then is the farmyard manure, then compost, then is a green manure. The green manure top of the top of seeing the top, then use the crop residue, then you farmyard manure, use the organic, and then you compost, then your fertilizer crop is the green. This is a soil aggregation. They paid after the incorporation year, every year. These are 4 types of step. Then you are all are the agriculture, all are the plants are the green. Okay. तो जब तुम इनऑर्गेनिक फार्म करो या ऑर्गेनिक फार्म करो, यू पास थ्रू द दिस टाइप ऑफ सिस्टम. अगर जो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, अगर जो भी तुम्हारा इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द सॉइल, क्योंकि वहां जितना भी टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं, जो भी तुम्हारा केमिकल्स है, वो तुम्हारा क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को, उसका स्ट्रेंथ को लॉस करता है. The effect of crops on soil irrigation in 23 years old rice wheat cropping system. You see, treatment, okay, fallow control and NPK. So this type of effect of residue, the treatment of rice wheat cropping system. Then now this is the effect of straw application. Okay, the straw is bulk density, hydraulic conductivity, WS and porosity. So what your WSA में क्या होता है? This is the medical association, Washington State Medical Association give the percentage. Okay, they all are the association. Rice store to meet 50% nitrogen, rice store to meet 25% nitrogen. Okay, due to the bulk density, hydraulic conductivity, water stable aggregate, and the porosity. Then the effect of crops on chemical quality. The chemical quality means the soil reaction. Okay, redox potential, electricity conductivity, soil organic matter, soil macro nutrient and micronutrient, macro and micro.
So what is the macro and micro? What is the difference between soil macro and micro? किस टाइप का न्यूट्रिएंट होता है मैक्रो एंड माइक्रो? बताओ सर जी। मैक्रो मतलब बोलो। बहुत छोटा होता है और माइक्रो मैक्रो से थोड़ा बड़ा होता है सर। माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है मैक्रो ना? माइक्रो बड़ा होता है सर, मैक्रो सबसे छोटा होता है सर। Yeah, good. Macro is the layers, the size is small, and micro is the some small size is greater from the macro. Okay, this is the chemical quality and the effect on the soil crop residue. Then now the soil reaction, with the all are same. The crop residue influence for soil pH through the accumulation of CO2 and organic acid during the decomposition. A sharp decrease in soil pH of flooded soil due to the application of rice straw has been recorded by the Moti and Singh. This is the person is the give. This is a sharp decrease in soil pH of flooded soil due to the application of rice straw. Okay. Then redox potential and electricity conductivity. Straw incorporation has changed and in intensified soil reduction and also increased pH. Okay, and electrical conductivity of the acid soil and decreased soil pH and electrical conductivity of alkaline soil under the submergence. Okay, then now this is the shown soil organic carbons. The incorporated removed 0.38 organic carbon, burned 0.43. This is the types of crop residue. This is the straw, wheat, and straw in the rice. Okay, duration 10 years and 7 years. You all are difference between the time. How to manage the carbon content. So after the removed 0.38% organic carbon, burned 0.43, you lost the carbon, and remove, burn, and incorporated. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। एक्चुअली तुम लोग का जो इंडस्ट्रियल आईडब्ल्यूटी जो सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पर जो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट, तो सो तुम लोग को, क्योंकि ये तो उसका फुली पार्ट नहीं, बट इसमें थोड़ा उसका पार्ट है कि व्हाट इज द डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर. ओके, तो ये इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं. ठीक है. सर हाँ बोलो. एक्चुअली हम गेट का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे सर, तो जैसे कि पावर प्लांट वगैरह होता है तो स्मोक कैसे स्प्रेड करता है, ये सब हम लोग को इसी सब्जेक्ट में पढ़ना होगा ना सर? स्मोक नहीं, इसने कहा इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट का सिर्फ ओनली वेस्ट के बारे में पढ़ना है. एक्चुअली हम लोग क्लास लिए थे स्मोक के बारे में, जो पावर प्लांट भी पढ़ाया था तुम लोग को, उसमें 2 ही लोग आया था. हम थर्मल पावर प्लांट पढ़ाए थे और स्टील प्लांट के बारे में. ओके सर. नहीं तो वही हम देख रहे थे सर, तो वो आइडिया नहीं लग रहा था हमको. ठीक है, एक दिन और आप उसका क्लास ले लेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अबाउट थर्मल पावर प्लांट स्टील प्लांट के बारे में, कि जो उसका स्मॉग है जो भी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द योर द दिस टाइप ऑफ प्लांट, थर्मल, ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट में तो स्मॉग निकलेगा ही, अगर स्टील प्लांट भी है तो वहां भी स्मॉग होगा कि वहां पे ड्यू टू द फ्रॉम द चिमनी वर्क. विदाउट उसका पावर का तो टरबाइन चलेगा ही नहीं, जब बॉयलर चलेगा नहीं, क्योंकि जो बॉयलर का जो पानी हीट होता है वो तो तुम्हारा चिमनी से ही होता है ना, डायरेक्ट उसको हीट प्रोड्यूस करता है. यस नहीं सर, वो क्वेश्चन ऐसे था ना कि स्मोक किस मतलब कि थी बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था. एक Okay. स्मोक लैंड कर रहा था, एक स्मोक स्ट्रेट फ्लो कर रहा था, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन था सर. तो ये क्वेश्चन तू सेंड करना, ओके देखेंगे सर. उसका. ओके,
उसको हम देख लेंगे, फिर उसी टाइप से तुम लोग को पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। हेलो या सर, हम लोग का ट्रेनिंग करना जरूरी है सर इस टाइम में। ट्रेनिंग करना जरूरी है, जो जरूरी तो है, 6 सेमेस्टर में हो तुम लोग ट्रेनिंग करो तो ज्यादा बेटर है। तो सर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर, मतलब घर पे हैं तो। भाई क्यों, तो कहीं? सर हम लोग का एग्जाम में सर कोई दिक्कत नहीं होगा सर, मार्क्स को लेकर के? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत होगा? चलिए, अच्छा। तुम्हारा जो बेनिफिट वो तुमको बेनिफिट होगा एक्चुअली, उस सो तुम कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर जो जाओगे आफ्टर बीटेक, यस। तुम दिखा यस सकते हो सर। कि हमने यहाँ पे इंटर्नशिप किया था, इस प्लांट में यहाँ पे किया था। वो तुम्हारे लिए यस बेनिफिट सर। होगा। तुम नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट लॉस, यू मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट होगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। तुम एग्जाम दोगे और तुम्हारा यस यस। मार्क्स जो आएगा वो तुम्हारा है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं। यस और कुछ? नो सर इस सर। बार का भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगा ना सर? शायद, आई डोंट नो, बट मे बी अगर शायद थर्ड वेव आ गया तुम लोग का टाइम तक, तो शायद प्रमोट भी हो सकते हो या ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड वेव तो शायद इंटर कर चुका है एज पर न्यूज सर कंडीशन। सर नोटिस सर में ऐसे डिक्लेयर कुछ कर दिया सर, एग्जाम नहीं लेगा। नहीं लेगा? नहीं सर, तो तुम मतलब लोग फी भी को, कम ले रहा है हम लोग को, एग्जामिनेशन फी। हाँ तो पहले तुम लेता था लोग, 1650 जब होता था एग्जाम, कम ओके ले रहा है ओके 1150। ओके, तो तुम लोग को शायद प्रमोट ही कर देगा। हाँ, मे उसमें बी। लिखा हुआ है सर कि रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए फॉर्म भरा, मतलब ओके इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। ओके सर, जो ओके। हम लोग का जो 5th सेमेस्टर का मार्कशीट गड़बड़ हुआ सर, उसके वो उसके चेंज बारे में कुछ बता। वो चेंज हो जाएगा तुम लोग का। शायद तुम लोग बात किए थे ना उज्जवल सर से, यस यस सर। तो शायद तुम लोग का जो प्रॉब्लम है वो गया है, लेके गए हैं जो भी हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ issue नहीं। ठीक है। यस सर। और सर कॉलेज खुलने का कोई चांस सर अभी हम लोग के? कॉलेज अभी तो तुम्हारे सीनियर्स के लिए खुला हुआ है, जो 8 सेमेस्टर का एग्जाम है उन लोग का, फाइनल ईयर का। अभी तुम लोग के लिए नोटिस शायद आएगा, देखो यस कब खुलता है। ठीक ओके है। सर। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर। सर। ओके।